नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबरों की शुरुआत करते हैं। एक बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त पंजाब सरकार ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में पदक विजेताओं और उनसे भाग लेने वाले पंजाब के खिलाड़ियों का सम्मान किया है। इस सम्मान समारोह में राज्यपाल वीपी सिंह, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह मौजूद रहे। कांस्य पदक विजेता, पुरुष हॉकी टीम और अन्य खेलों में प्रतिनिधित्व करने वाले पंजाब के खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर ने कहा है कि वो सभी खिलाड़ियों को अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाएंगे। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਂਕੜੇ ਦੱਸੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜਿਮਸ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਡੋਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਟ੍ਰੋਟਰਫ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ हैं। आई विश सारे को कुछ ज़्यादा होती कि वो करते, लेकिन जो इन्होंने प्लान बनाया है फ्यूचर वास्ते, नाले यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स की भी पटियाले आ रही है, ਅਸੀਂ सब कुछ करांगे अपने स्पोर्ट्स वास्ते ताकि ਤੁਹਾਨੂੰ कदे लोड़ ना पवे। आने वाली पीढ़ी थोड़े तो अगे आने वाली पीढ़ी भी होगी, वो भी तैयार करिए आप ताकि अपने सूबे का नाम रोशन हो सके। एक मैंने पता है कई खबर आई सी मेरे को कि तुसी जेड़े भी मेडलिस्ट हो चाहते हो कि तुहानू कोई ना कोई असी नौकरी पंजाब गवर्नमेंट दी असी देवांगे तुहानू। ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਗੁਰਮੀਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਚਿਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ हेल्प कर सकते। और पंजाब में मोगा जिला के बाघापुराना विधानसभा हलके के 17 गांव के किसानों की चिरलंबित मांगों को सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पूरा कर दिया है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जिले की सियुवा रजबाहा के नवीनीकरण और रिलाइनिंग के लिए 13 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है। बाघा पुराना ब्लॉक समिति के चेयरमैन गुरचरण सिंह चीदा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के साथ उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की। पिछले फतेह 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਤਿਹ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਰਮ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਟੀਕਾ ਲਵਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਯੂਥ ਦੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਵਾਇਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ 80% ਤੱਕ ਟੀਕੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਕ ਘਰ ਦੀ ਟੀਮ ਰਲ ਕੇ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀਆਂ ਦੋਨੇ ਡੋਜ਼ਾਂ ਸੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। इसी एक सब ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਕਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਸੀਐਸਸੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ 1500 ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ 750 ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਸੀਐਸਸੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ 750 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਉਦੋਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸਲਮ ਏਰੀਆ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਅਵੇਅਰ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਬਲੱਡ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕੇ, ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਹਮਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ। ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਨਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ
स्पोर्ट्स किट्स सेवा की उनकी शुरुआत हो रही है। फिर साहब की प्राथमिकता सेक्रेटरी साहब ने मिनिस्टर साहब ने बहुत अच्छी है सर। वेरी गुड कंपनी सर, इट्स क्वालिटी बैग क्योंकि काका जानते ना कॉटन पसंद है ना। बहुत अच्छी सर, बहुत बढ़िया। सर 2 बैट, क्रिकेट बैट, वॉलीबॉल ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੈਟ ਸਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਫੜ ਸਰ ਇੱਕ ਫੁੱਟਬਾਲ ਜੀ, ਦੋ ਫੁੱਟਬਾਲ ਜੀ, ਰੋਇੰਗ ਬਾਲ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਨਾ। ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਸਰ। ਵੀ ਆਰ ਨॉट ਕੰਪਰੋਮਾइज ऑन दैट। खबर चंडीगढ़ से, जहां पर ओलंपिक ब्रांज पदक विजेता हॉकी खिलाड़ी सुमित के गांव वालों ने मुख्यमंत्री को न्योता दिया है। जहां पर हॉकी टीम के खिलाड़ी सुमित के पदक लेने के बाद उनके गांव के लोगों ने सीएम मनोहर लाल से मुलाकात की। लोगों ने मुख्यमंत्री का मुंह मीठा सोनीपत के मशहूर घेवर से करवाया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गांव के लोगों निमंत्रण स्वीकार किया और इस दौरान सीएम ने ग्रामीणों की समस्या को सुना और संबंधित अधिकारियों को समाधान करने के आदेश दिए हैं। हरियाणा में खंड स्तर पर 40 नई प्रयोगशाला स्थापित की गई हैं, जिनका उद्घाटन सीएम मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया है। जहां पर प्रदेश में चंडीगढ़, कुरुक्षेत्र, कैथल, यमुनानगर सहित कई जगहों पर प्रयोगशालाओं का उद्घाटन हुआ है। आपको बता दें कि जहां पर ये 4 तस्वीरें आज ही की हैं। प्रयोगशाला के जरिए इस साल करीब 25 लाख एकड़ जमीन की जांच की जाएगी। उद्घाटन के मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने का लक्ष्य हमने लिया है। इसी के तहत प्रदेश में मिट्टी जांच प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं, ताकि किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर यह बताया जा सके कि किस फसल की बिजाई करना किसानों के हित में होगा। अगले 3 सालों में प्रदेश की पूरी 75 लाख एकड़ कृषि भूमि की मिट्टी की जांच की जाएगी। सीएम ने यह भी कहा कि हरियाणा ने देश के खाद्यान्न भंडार को भरने के लिए अहम योगदान दिया है। अब हरित क्रांति आई तो प्रदेश के किसानों ने भरपूर उत्पादन कर देश में खाद्यान्न की कमी को पूरा किया है। उन्होंने कहा कि आज खाद्यान्न उत्पादक की मात्रा के साथ साथ गुणवत्ता पर भी ध्यान देने की बहुत जरूरत है। और चंडीगढ़ में पूर्व विधायकों की बैठक खत्म हो गई है। बैठक के खत्म होने के बाद नफे सिंह राठी ने कहा कि आज पूर्व विधायक एसोसिएशन की बैठक हुई थी। इस बैठक में सभी विधायकों ने नफे सिंह को 3 साल के लिए और अध्यक्ष बने रहने के लिए स्वीकार कर लिया। इसको लेकर बैठक में चर्चा भी हुई। इसी के साथ उन्होंने कहा कि सरकार सबका साथ सबका विकास को लेकर चल रही है, लेकिन इस पर खरा नहीं उतर रही है। हम भी इसी समाज के रहने वाले हैं और सम्मानित पूर्व विधायक हैं। हमें भी सरकार पूरा मान सम्मान दे। चुनाव को लेकर के हम चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हम मिले। तो एजेंडा यही था कि भाई नया तो एजेंडा यही था कि भाई नया प्रधान और नई कार्यकारिणी का गठन हो। उसके लिए मैंने इस्तीफा दे दिया था। तो सभी साथियों ने एकजुट होकर के सर्व समिति से फैसला ले लिया कि अगले 3 साल तक फिर आप इसके प्रधान रहोगे। हम आपको प्रधान ही देखना चाह रहे हैं। और सर्व समिति से फैसला ले करके मेरे को दोबारा से जिम्मेदारी दे दी। आज कई साथियों के सुझाव आए और उन सुझाव को लेकर के हम चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हम मिले। सेल्फ हेल्थ ग्रुप के प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का बयान भी सामने आया है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हमने प्रदेश की सभी 22 जिलों में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को पिंजौर में तीज महोत्सव कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया है, जहां पर 2 दिवसीय कार्यक्रम में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के प्रोडक्ट्स को
हाईलाइट किया जाएगा। और इसी के साथ दुष्यंत चौटाला ने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए अलग अलग महिला स्वयंसेवक संघों को प्रधानमंत्री ने सम्मानित किया है। तीज पर हरियाणा प्रदेश के 22 जिलों के जो हमारे हार्ड वर्किंग वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनको हमने पिंजौर के अंदर तीज महोत्सव के तौर पर 2 दिन के लिए इनवाइट किया और इनवाइट करके हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स द्वारा बनाएगी अलग अलग प्रोडक्ट्स को हाईलाइट किया। कल और धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला भारतीय किसान यूनियन के नेता जहां पर राकेश टिकैत पहुंचे और इसी दौरान राकेश टिकैत ने कहा कि कुरुक्षेत्र महाभारत स्थली है और किसानों के खिलाफ कितने भी आपराधिक मामले दर्ज हो जाएं लेकिन आंदोलन दबने वाला नहीं है। इसी के साथ बताया कि आज जो बैठक हुई है उसमें आगामी रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरह से केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सके। और कुरुक्षेत्र में किसान महापंचायत के बाद भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मीडिया से बातचीत की। राकेश टिकैत ने बताया कि 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत होगी। मुजफ्फरनगर की धरती पर देश के कई प्रधानमंत्री ने शिरकत की। उसी धरती पर हमने हरियाणा, पंजाब और तमाम राज्यों से भारी संख्या में किसान शिरकत करेंगे और इस महापंचायत में कई बड़े फैसले भी होंगे। इसके अलावा टिकैत बोले कि अंबाला में जिन किसानों पर पर्चे दर्ज किए गए हैं सरकार उन्हें छोड़े, बातचीत से ही समाधान निकल सकता है और समाधान सरकार को ही निकालना होगा। राकेश टिकैत ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अनिल विज आज मुख्यमंत्री का सपना ले रहे हैं, हमने उन्हें सपोर्ट किया है और अब अनिल विज भी हमें सपोर्ट करें। जैसे है भाई गिरफ्तार जो लोग हैं उनको छोड़ दे, नहीं तो टोहाना जैसे है, दूसरी जगह है, सिरसा में है, हिसार में बातचीत हुई है, तो ये यहाँ पे होगा। अंबाला में भी लोग अरेस्ट है, यहाँ पे भी पर्चे दर्ज है, तो ये गलत चीज है। पर्चे दर्ज ना करो, बातचीत से हमारी सिफारिश करो हरियाणा भारत सरकार से और बातचीत से इसका समाधान निकाल लो। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।